Hello students, let us talk about the seventh and last chapter of this part 1 state syllabus, linear programming. In the first lecture we will discuss the first point. 2 points are included in this chapter. First is about linear inequations in two variables, their meanings and graphical representations. Similarly, second point, linear programming problems, their meanings and graphical representations, and that will end the chapter. Now in the previous classes you have studied the meanings of linear inequations. Formal definition we can write in this manner: a mathematical expression of the form ax plus by is less than c, or ax plus by is greater than c, where what are ABC? They are constants, some real numbers, and these coefficients of x and y means a and b, these are not zero साइमल्टेनियसली, क्योंकि दोनों अगर जीरो हो गए तो जीरो इज लेस देन सी, जीरो इज ग्रेटर देन सी, that expression will not involve any variable and hence it cannot be called as the inequality. Variables 1 or 2 must be present. Linear inequations in two variables are always of this type of mathematical expression. जैसे आपको 2x plus 3y minus 5 is less than 0. This is, इस माइनस 5 को उधर लेके गए तो प्लस 5 हो जाएगा. 2x plus 3y is less than 5, ऐसा भी बोल सकते हैं आप. Now the values of x and y, if we refer the plane coordinate system, then that pair will represent some point, x coordinate, y coordinate. Whether those values of x and y satisfy this inequality or not. जैसे आपको पॉइंट दिया है 1 minus 2, different points can be given, मतलब different values of x and y are given, and if we replace those values in this inequation, जैसे 2 into 1 plus 3 into minus 2 minus 5, is it less than 0? कैलकुलेट करो. 2 minus 6 minus 5 minus 11 plus 2, वो बनता minus 9. Yes, it is less than 0. And so what will be your conclusion? X equal to 1, y equal to minus 2 is the solution, is a solution of this linear inequation. ऐसे और कौन कौन से solutions है? All those solutions you can verify. 2 minus 1, 0, 3, whether they are solutions or not, that you can check. इसके पहले हमने लीनियर इक्वेशंस की बात किए थे.
2x plus 3y minus 5 is equal to 0. This is the linear equation in two variables. इक्वालिटी है वहां पर. ये अगर मान लो इक्वालिटी का साइन लेस देन या ग्रेटर देन से रिप्लेस किए तो बनेगा इन इक्वेशन. अच्छा, लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे हम? अगर आपको लीनियर इक्वेशन दिया है तो इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ लाइन. ऐसा कोई लीनियर इक्वेशन नहीं है जिसका ग्राफ बोलो या पॉइंट्स बोलो लाइन के नहीं है. एवरी लीनियर इक्वेशन विल कंटेन ऑल द पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन. वो स्ट्रेट लाइन डिपेंड रहेगी यहाँ ए बी सी की वैल्यूज के ऊपर. तो जब हम ग्राफ निकालते एक आधे लाइन का पॉइंट्स प्लॉट करके उनको ज्वाइन करते स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको. ऐसा कर्व नहीं मिलेगा. तो दीज पॉइंट्स, दो तीन पॉइंट्स हम लेते हैं, लेकिन लाइन बोले तो देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स एंड एवरी पॉइंट will have two coordinates and all of them will satisfy this equation. अगर वो पॉइंट लाइन का है तो इसलिए infinite solutions are there for every linear equations in two variables and all the solutions will be present on this line. वो सॉल्यूशन सेट अगर तुमको शो करना है तो इस प्रकार शो कर सकते हैं. ऑल द पॉइंट्स लाइक एक्स एंड वाई सच दैट दिस कंडीशन इज satisfied. ax plus by minus c plus c is equal to 0. उसी प्रकार इन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट ऑल द पॉइंट्स satisfying that इन इक्वेशन. तो ये जो लाइन है, दिस लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू टू पार्ट्स. टू हाफ प्लेन्स बोल सकते हैं. ये पूरा प्लेन है. इन दिस प्लेन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कंसिडर्ड. द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, h1 एंड h2. तो आपकी जो इनइक्वालिटी रहेगी स्ट्रिक्टली लेस देन 0 अगर है तो अपर पार्ट या लोअर पार्ट इक्वल टू 0 नहीं, वहां पर इक्वल टू 0 के लिए ये पॉइंट्स रहेंगे. यहाँ लेस देन और इक्वल टू ऐसा भी चांस हो सकता. तो इस इन इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट में ये भी पॉइंट्स फिर इंक्लूड हो जाएंगे लाइन के. तो एक इन इक्वेशन के लिए एक प्लेन तो दूसरे इन इक्वेशन के लिए दूसरा प्लेन. तो दैट इज नथिंग बट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ these inequations. How to represent the inequations graphically? That we will discuss. Graphical representation of inequations in two variables x and y. That means they are of the form ax plus by
is less than or equal to or greater than or equal to some constant C. The graphical representation of inequations into variables x and y is a region on any one side of the straight line. लाइन का ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा. Any one side of a line. कौन सी लाइन? जिसका इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी हो. तो यहाँ लेस देन और इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू को पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट करके ग्राफ निकाल लो और फिर बाद में इधर के पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे इन इक्वेशन को कि उधर के, वो आप चेक कर सकते. तो ये जो सभी इन इक्वेशंस है इसके हम 4 पार्ट्स बनाएंगे. फोर पार्ट्स के ऊपर 4 टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स आपको 7.1 में देखने मिल जाएंगे. एग्जांपल में क्या रहेगा? शो द इनइक्वेशंस ग्राफिकली. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द इनइक्वेशंस. उसी को आप सॉल्यूशन भी बोल सकते. सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस. सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसे फाइंड करते हैं हम उस प्रकार. तो पहला टाइप कौन सा? जिसमें a 0 है. दूसरा टाइप कौन सा? जिसमें b 0 है. ए बी सी रियल नंबर्स है. 0 और नॉन 0 सभी के लिए चांसेस रह सकते. ए और बी में से एक आधा 0 हो सकता है लेकिन दोनों नहीं. दोनों 0 रहे तो इधर में सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, इन इक्वेशन बनेगा ही नहीं हो. तो a 0 लेंगे, दूसरी बार b 0 लेंगे, तीसरी बार c. और फोर्थ टाइप में नन ऑफ देम इज 0. अगर आपने b 0 लिए तो आपको लीनियर इनइक्वेशन कौन सा टाइप में दिखेगा? लीनियर इनइक्वेशन ऑफ द टाइप उसमें केवल x की टर्म रहेगी. अगर b 0 लिए तो ax लेस देन और इक्वल टू c. a नहीं होना वहां पर तो केवल x भी रख सकते. लेस देन और इक्वल टू c अपॉन a. उसको आप दूसरे कोई एक आधे स्केलर से डिनोट कर सकते. यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू रह सकता. दूसरे टाइप में a 0 लिए तो by इज लेस देन और इक्वल टू c. लीनियर इनइक्वेशन ऑफ द टाइप by is less than or equal to c और y is less than or equal to c अपॉन b. उसको कोई और एक आधे कांस्टेंट से डिनोट अगर करते जैसे k, तो y is less than or equal to k और ग्रेटर देन और इक्वल टू k.
if we take C0, then ax plus by less than or equal to 0, or ax plus by greater than or equal to 0. फोर्थ टाइप कौन सा होगा? ax plus by लेस देन और इक्वल टू c, तीनों रहेंगे वहां, और ग्रेटर देन और इक्वल टू c. तो ये चार टाइप्स में हम हाउ टू शो देम ग्राफिकली. सबसे पहला टाइप, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर होना आपको, तो गिवन इन इक्वेशन से हम क्या बनाएंगे? इक्वेशंस, और फिर उनके ग्राफ्स. दे विल बी द लाइंस. ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ x इक्वल टू h. यहां से भी वही. तो ग्राफ के लिए आपको मालूम है x एक्सिस और y एक्सिस. जब भी आपके पास में x इक्वल टू सम कांस्टेंट रहता है, तो सच लाइन बिकम्स ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस. फिर y एक्सिस को पैरेलल तो है, फिर लेफ्ट में कि राइट में, वो डिपेंड रहेगा h के ऊपर. पॉजिटिव है तो राइट में, निगेटिव है तो लेफ्ट में. जैसे h इतने में कहीं है मान लो, तो दिस इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस whose equation is x equal to h. अब इस इन इक्वेशन को यहां शो करना है, तो दिस लाइन x इक्वल टू h डिवाइड्स द प्लेन इनटू टू पार्ट्स. एक इधर वाला पार्ट, दूसरा इधर वाला पार्ट. टू हाफ प्लेन्स. तो कौन से हाफ में आपको पॉइंट्स लेना पड़ेगा वो सोचो. इधर लेफ्ट साइड में रहेंगे कि राइट साइड में? राइट साइड में जाओगे आप तो आपको x की वैल्यूज ग्रेटर मिलेगी, h से ग्रेटर हो जाएगी वो. स्मॉलर होना तो इधर लेफ्ट में. तो इधर का एरिया पूरा आप शेड कर सकते, पूरा. शेडिंग कैसा करते हैं मालूम है आपको? जिस लाइन से आपको शेड निकालना है, परपेंडिकुलर लाइंस निकाल लो, पूरा शेडिंग हो जाएगा. कुछ लोग शॉर्ट में ऐसे भी एरो शो करते, इंफिनिटी तक जाएंगे वो. मतलब इधर की एरिया, इधर की रीजन पूरी, दैट विल रिप्रेजेंट द इन इक्वेशन x लेस देन और इक्वल टू h. आपको अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू h होना, तो ये तो लाइन रहेगी x इज इक्वल टू h. If we want the points satisfying this in equation, naturally you have to consider the points on the right side, क्योंकि लेफ्ट साइड में हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपको दिखेगा लेस देन h, and hence you have to shade the right side region. नीचे ऊपर दोनों तरफ. तो दिस रीजन represents the inequation graphically. Graphical representation of inequation is a region on any one side of the line. लाइन पहले निकालना जरूरी है, बाद में उसमें शेड किधर दिखाना है
that you should be able to decide. So this is the region which is represented by the inequation x greater than or equal to h, और ये लाइन का इक्वेशन बनेगा x equal to h. You have to remember that equality is there, मतलब इधर के सभी पॉइंट्स तो रहेंगे, साथ में लाइन पर के भी पॉइंट्स रहेंगे, इसमें भी लाइन पर के भी पॉइंट्स रहेंगे. So this line becomes the common solution of such two inequalities, two inequations. ये हो गया पहले टाइप का रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. नंबर 2 में हम कौन सा इक्वेशन लेंगे जिसमें a की वैल्यू 0 मतलब वहां पर y रहे सिर्फ, लेस देन और इक्वल टू k और ग्रेटर देन और इक्वल टू k. तो यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ विच इक्वेशंस y is equal to k. Draw this line. एक ही इक्वेशन है, एक ही ग्राफ, यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस ओरिजिन. अब जब भी आपके पास में y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऐसा इक्वेशन रहता है तो इट इज द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. ऊपर है कि नीचे है ये कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा, पॉजिटिव है तो ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे. तो जैसे k इज पॉजिटिव सपोज, तो दिस इज द लाइन हुज इक्वेशन इज y इज इक्वल टू k. अभी हमको कौन सा इन इक्वेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है? पहला मान लो y इज लेस देन और इक्वल टू k. जैसे k की वैल्यू यहाँ 3 है तो इधर में बनेंगे 2 1 0 -1 है, सब लेस देन k है, लेस देन 3 है. ऊपर में जाओगे तो ग्रेटर देन k. तो लेस देन k होना तो आपको इधर का रीजन शेड करना पड़ेगा. तो ये जो शेडेड रीजन है, व्हाट इज दिस? इट रिप्रेजेंट्स the inequation y less than or equal to k graphically. Graphical representation of the inequations we are studying. दूसरा इनइक्वेशन अगर लेते हैं आप तो लाइन तो वही है y इज इक्वल टू k, लेकिन यहाँ पर इनइक्वेशन में कौन सा साइन है? ग्रेटर देन का. तो y की वैल्यू ग्रेटर देन के इधर रहेगा, ऊपर, नीचे नहीं. जो प्लेन के दो हाफ बन रहे, which half is to be shaded, that you have to decide. And now this is the region to be shaded. This shaded region implies the inequation y greater than or equal to k. सेकंड टाइप के बाद में थर्ड टाइप, नंबर 3 में आपको x की टर्म रहेगी, y की रहेगी, लेकिन कांस्टेंट टर्म 0 लेंगे. तो उस टाइप के इक्वेशन का पहले ग्राफ बनाएंगे, बाद में शेडिंग के बारे में सोचेंगे. ax प्लस by लेस देन और इक्वल टू c0 ले रहे हैं हम. सेकंड इन इक्वेशन कौन सा बनेगा फिर?
ax plus by greater than or equal to 0. So we draw the line whose equation is of the type ax plus by equal to 0. अब a और b की हम पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं लिए, लेकिन हमको पता है कि इस टाइप का इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहता है, सभी स्ट्रेट लाइन सही है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस ऐसी नहीं बनेगी। जब भी कांस्टेंट टर्म वहां पर नहीं रहती, ऐसे वक्त द लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, पासेस थ्रू ओरिजिन। जैसे आपके पास में 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 ऐसा इक्वेशन है। हमको पता है इसका स्लोप -2/3 नेगेटिव स्लोप है, इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा एक्स एक्सिस के साथ, और ओरिजिन 0 0 विल सेटिस्फाई, मतलब इट पासेस थ्रू ओरिजिन। तो ये बनेगा ग्राफ ऑफ द लाइन, निकाल लिए हमने। अब इधर का हाफ शेड करना है कि इधर का हाफ, कोई भी एक हाफ का पॉइंट ले लो कोई। जैसे इधर में एक्स एक्सिस का पॉइंट लेते हैं हम 1 0, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ अगर पुट करते, यहाँ अगर पुट करते तो पहले हम लेस देन वाली केस कंसीडर कर रहे हैं, सेकंड में इधर ग्रेटर देन वाली केस लेंगे। तो 2, यहाँ 2 है ना, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 0 0, 2 प्लस 0 कितना बनता, 2 प्लस 0 2। इज इट लेस देन 0? डेफिनेटली नॉट। तो एक पॉइंट अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि इस साइड का कोई भी पॉइंट, नो पॉइंट, चाहे यहां लो आप, इधर लो, कहीं भी लो, नो पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, एंड हेंस हियर यू कैन नॉट मेक शेडिंग, you have to shade the opposite plane, half plane, opposite side of the line। दो पार्ट्स में से इधर का पार्ट आएगा शेडिंग में, परपेंडिकुलर एरोज शो करता है, परपेंडिकुलर एरोज। कहाँ से स्टार्ट करना है एरो, यहाँ से कि यहाँ से कि यहाँ से, हो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहो तो पॉइंट इधर का लेने के बजाय आप इधर का भी ले सकते हैं, -1 0 पुट करके देखो, -2 आएगा, लेस देन 0 है। सो इफ वन पॉइंट satisfies the inequation, then all the points on that side of the line will satisfy, and hence one point is sufficient to check whether the shading should be on first part or on second part। ग्रेटर देन वाला एक आधा एग्जांपल लेते, ले लो यहाँ पर 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस हमने ली, मतलब वहां पर स्लोप रहेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप है, ऐसा ऑब्ट्यूज एंगल वाली लाइन नहीं रहेंगी, एक्यूट एंगल इस टाइप की लाइन रहेंगी, वो पासिंग थ्रू द ओरिजिन है ही, हो गया।
एक ओरिजिन तो कंफर्म है, दूसरा पॉइंट आप अपने चॉइस से ले सकते। जैसे x के जगह पे 1 लिए तो y कितना, x के जगह 0 छोड़ के, क्योंकि 0 ले तो y भी 0 होगा, वो पॉइंट तो होगा कंफर्म। दूसरा पॉइंट यहाँ पर प्लॉट करने के लिए एक x की वैल्यू लो, दूसरे मिलाओ y की, ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये कौन से इक्वेशन का ग्राफ है, 2x minus 3y equal to 0 का। Now this line divides the plane into two halves, first half, second half। तो again you can check by considering some point on some half। यहाँ लेंगे 1 0 मान लो, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, क्योंकि पॉइंट है x एक्सिस का। तो देखो 2 into 1 2 ग्रेटर देन 0 होता है क्या, यस, एंड सो दिस साइड इज टू बी शेडेड, इधर की नहीं। शेडिंग के लिए जो परपेंडिकुलर लाइंस निकालते इस लाइन पे, ये जो एरोज शो करते हैं हम, इक्वल लेंथ के एरोज लेना चाहिए फॉर मेंटेनिंग द सिमेट्री। कौन सी इंक यूज करना वो आपके ऊपर डिपेंड है, लाल पीली नीली, लेकिन पेपर में वैसा नहीं कर सकते आप। यू हैव टू यूज ओनली वन टाइप ऑफ इंक। So this region represents the inequation, कौन सा, 2x minus 3y is greater than or equal to 0 graphically। ये पूरे रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पॉइंट्स बोलेंगे हम सॉल्यूशन है इस इनइक्वेशन का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इनइक्वेशन का कर रहे हैं, मतलब we are showing its solutions, infinite solutions are there। नंबर 4 में कौन से टाइप का इनइक्वेशन लेंगे, जिसमें तीनों a b c कांस्टेंट्स प्रेजेंट हो, all the three, ax plus by is less than or equal to c, or ax plus by greater than or equal to c। तो उसके लिए आपको फिर से इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ बनाने के बाद में लाइन का कौन सा पार्ट, कौन सा हाफ शेड करना है, that you have to decide। जैसे लाइन रहेगी मान लो इस टाइप में, ax plus by is equal to 0, अब लेस देन और इक्वल टू c, आना चाहिए ऐसे पॉइंट्स। ax plus by is equal to c, लाइन का ग्राफ निकालने के बाद कौन से हाफ को हम शेड करेंगे,
तो ऐसे लाइन के लिए सबसे आसान पॉइंट कौन सा रहेगा? लाइन तो ओरिजिन में से पास हो नहीं रही, तो क्यों ना हम ओरिजिन को ही ले ले टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट अगर ओरिजिन को लेते, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू मान लो 5 लिए आपने, लेस देन और इक्वल टू 5 लिए, उसका कन्वर्जन इक्वालिटी में किए तो ऐसा इक्वेशन बनेगा जिसका ग्राफ अभी हमने यहाँ शो किए। तो क्या ओरिजिन उस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? यस, 0 इज लेस देन 5 एंड हेंस ये जो साइड है जिसको आप ओरिजिन साइड बोल सकते हैं, जो पॉइंट उस साइड में है उसकी साइड, पी साइड, क्यू साइड, ओ साइड, वो यानी ओरिजिन। टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इसका ग्राफ हमने यहाँ शो किए। ग्राफ कैसे निकालना है वो तो आपको पता है ही, x की वैल्यूज y की वैल्यूज जनरली 2 पॉइंट्स लेते हैं हम कम से कम। एक पॉइंट लेते हैं हम x एक्सिस पे जहाँ y 0 है, y 0 तो x कितना, और y एक्सिस का पॉइंट जहाँ x 0 है तो वहाँ y कितना। यहाँ फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए ऐसा अगर लगता है तो 2 और 3 दोनों जिस नंबर में है फैक्टर्स, ऐसा नंबर 6 दोनों का एलसीएम, तो यहाँ बनेगा x जब 0 है तो y होगा 2, और y जब 0 है तो x बनेगा 3। x एक्सिस पर का पॉइंट बनेगा 3 0, और y एक्सिस का पॉइंट बनेगा 0 2। हाउ टू consider the 2 points to be plotted, one on x axis, other on y axis. तो पेयर्स 2 पॉइंट्स के लिए, पहले 0 2, दूसरी यहाँ 3 0, ज्वाइन कर दिए हमने, पहले ही ज्वाइन किए थे। हालांकि पहले आपने ये टेबल निकालना चाहिए। एक पॉइंट x एक्सिस का, दूसरा y एक्सिस का, उसकी पेयर्स x एक्सिस पे अगर 0 लेते तो y कोऑर्डिनेट क्या है, इक्वेशन तो वही है, पॉइंट्स वही रहेंगे 0 2 3 0। ग्राफ निकालने के बाद में टेस्टिंग पॉइंट कौन सा लेंगे आप? O 0 0, you can take we take as a test point for our convenience। किसी ने बोला कि नहीं हम ये नहीं लेते, हम लेते कोई इधर का पॉइंट या फिर उधर का पॉइंट, 3 के बाद में 4 आता है, 4 0, यू आर फ्री। सिंपलेस्ट पॉइंट इसलिए हमने अपने कन्वीनियंस के लिए origin we take as a test point
मतलब उसमें इनइक्वालिटी में पुट करेंगे x और y दोनों 0, तो क्या वो इन इक्वेशन ट्रू है? इन इक्वेशन अगर सेटिस्फाई होता है, इफ इन इक्वेशन is satisfied, then what can we conclude? The solution of that inequation is on the origin side. Solution मतलब the region to be shaded. The solution of that inequation is on origin side बोलेंगे उसको हम. Origin side किसकी? Of that line. हर इक्वेशन जो लीनियर है that will represent a line. उसकी ओरिजिन साइड की नॉन ओरिजिन साइड. अगर ए बी सी तीनों नॉन जीरो है तो प्रॉब्लम ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड. तो यहाँ पर हमको दिखता है कि 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 6 है, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6 एंड हेंस origin side should be shaded. Draw perpendicular arrows of approximately equal lengths. This region will indicate the inequation 2x plus 3y less than or equal to 5. और अगर ग्रेटर देन है तो ओरिजिन साइड doesn't satisfy the inequation and hence ओरिजिन साइड छोड़ के दूसरी साइड में फिर टेस्टिंग की जरूरत नहीं. ओरिजिन को टेस्ट कर लिए, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब कोई भी पॉइंट इधर का सॉल्यूशन में रहेगा नहीं. द रीजन विल बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन साइड. तो दिस शेडेड रीजन इंडिकेट्स द इनइक्वेशन 2x plus 3y greater than or equal to 6 ग्राफिकली. तो ये चारों टाइप्स हमने आपको समझा दिए. हो सकता है एक साथ आपके पास में दो इन इक्वेशंस आ जाए, तो पहला इन इक्वेशन और दूसरा दोनों पहले के हमने शेडिंग कर लिए, दूसरे के भी शेडिंग, ऐसा इक्वेशन है मान लो. ओरिजिन साइड सेटिस्फाई होती है तो ऐसे एरोज निकालना पड़ेगा. तो कॉमन एरोज फर्स्ट एंड सेकंड, दिस कॉर्नर will give you all such points which will satisfy the two given inequalities at a time. बाकी इधर के पॉइंट्स लेंगे तो they will satisfy one of the two. दोनों सेटिस्फाई होने वाले पॉइंट्स हमको होना, मतलब कॉमन सॉल्यूशन होना इनइक्वालिटीज का. तो इधर का पोर्शन आपको कंसिडर करना पड़ेगा. कॉमन सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशंस अगर देखते हैं तो वो तो हमने ग्राफिकली सॉल्व करके निकाले 10th क्लास में. एक 2x plus 3y इक्वल टू 6 दिया है, x plus 5y इज इक्वल टू 1 दिया है. इसका ग्राफ निकाल के, दोनों का ग्राफ निकाल के जो पॉइंट बनेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो बनेगा सॉल्यूशन. कॉमन सॉल्यूशन है वो, एक ही पॉइंट है वहां पर.
लेकिन इन इक्वेशंस अगर है तो उसमें कॉमन सॉल्यूशन के इनफाइनाइट पॉइंट्स, इसलिए उसको हम ग्राफिकली शो करना चाहिए। उसको सॉल्व करके ऐसा एक सिंगल पॉइंट नहीं मिल सकता आपको इन इक्वेशंस का, जहां तक सवाल है, इसलिए उनका कॉमन सॉल्यूशन ग्राफिकली ही शो करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम ये चार टाइप्स में से कौन से टाइप में कौन सा एग्जाम्पल बैठता है 7.1 का। बाकी कोई विशेष इसमें थ्योरी नहीं है, नो थ्योरम एट ऑल, ओनली प्रॉब्लम्स। 7.1 का फर्स्ट क्या है क्वेश्चन? सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग इन इक्वेशंस। पहला कौन सा है? x is greater than or equal to 0. We have to solve, we have to draw the inequation x greater than or equal to 0. तो उसके लिए पहले हम लाइन निकालेंगे x equal to 0. To draw this inequation, to show this inequation graphically, we draw the line x equal to 0 in the plane coordinate system. जैसे x एक्सिस y एक्सिस हम लेते हैं, यहाँ ओरिजिन रहेगा, तो ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन मतलब ऐसे पॉइंट्स होना जहां पर सभी x 0 है, सभी पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट 0 है, और ऐसे पॉइंट्स हमेशा y एक्सिस पे रहेंगे, क्योंकि हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 दिखेगा आपको, चाहे वो ओरिजिन हो या फिर नॉन ओरिजिन हो। y एक्सिस का इक्वेशन बनता है x इक्वल टू 0, x एक्सिस का इक्वेशन बनता y इक्वल टू 0। तो ये तो होगा लाइन की बात, हमको होना इन इक्वेशन। तो इस लाइन के कौन से साइड में आप शेड करोगे ताकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बने? इधर के नंबर्स तो 0 से स्मॉलर है, -1 -2 सब, इधर +1 +2 है ना, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 में ये भी पॉइंट्स रहेंगे लाइन पर के। तो दिस पोर्शन, this side, right side of the line you have to shade. This will represent the inequation x greater than or equal to 0 graphically. Clear? Y is equal to 0 means x axis, y greater than or equal to 0 अगर बोलता है वो तो इधर में आएंगे शेडिंग, लेस देन 0 बोलता है तो इधर, x लेस देन और इक्वल टू 0 बोलता होगा तो फिर इधर में शेडिंग दिखाना पड़ेगा। बाकी पहले के 3 कर सकते, सेकंड में क्वेश्चन वही है, सॉल्व ग्राफिकली, लेकिन यहाँ पर एक इनइक्वेशन नहीं 2 इनइक्वेशन दिया है एक में। नंबर 1 में कौन से 2 इनइक्वेशंस है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
So to draw these two inequalities, we must draw the two equations. Two equations will represent two lines. तो ये टू लाइंस पहले कंफर्म कर लो. जैसे जब भी आप एक्स एक्सिस निकालते हो, मतलब आपने y इज इक्वल टू 0 निकाल लिए. एक्स एक्सिस का इक्वेशन है नो, y इक्वल टू 0. जब आपने y एक्सिस निकाल लिए तो इसका मतलब आपने कौन सी लाइन निकाले, x इक्वल टू 0. वो ये दोनों लाइंस आ, पहली लाइन x इक्वल टू 0 है y एक्सिस के राइट में या लेफ्ट में. वो बोलता है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इधर में शेडिंग आएगा राइट में. y अगर पॉजिटिव हो ना, उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इधर का शेडिंग. x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना तो ऊपर के नीचे, इसमें लेफ्ट और राइट नहीं. x एक्सिस के ऊपर आएगा शेडिंग. अब इसमें ये हो गया y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. हमको केवल कॉमन शेडिंग होना, तो सिर्फ ऐसा रीजन देखो जहां पर वर्टिकल एरोज है और हॉरिजॉन्टल भी है, दोनों ऐसी रीजन बोले तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट. और हमको पहले पता है कि दोनों x और y पॉजिटिव जहां है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट. x पॉजिटिव है लेकिन y निगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट. x निगेटिव है, y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट. दोनों निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट. तो केवल वही पोर्शन आप शेड कर सकते चाहो तो, या फिर ऐसे एरो शो करने के बाद में कलर भी कर सकते इसको. फिर से एग्जाम में नहीं, एग्जाम में केवल आप शेडिंग कर सकते, नहीं तो यहाँ पर बाजू में लिख सकते एक्सप्लेनेशन. द कॉमन रीजन common shaded region is the solution of the inequations. कौन से, x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0. बाकी इधर उधर का तुम पॉइंट्स लेते, कोई भी पॉइंट लेते, इधर उधर के कोई भी पॉइंट्स लेते, तो they will not satisfy these inequalities simultaneously. दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए ऐसे पॉइंट्स. इधर के पॉइंट्स तो एक भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इधर के पॉइंट्स लेंगे तो दूसरी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी. ये पॉइंट्स के लिए जहाँ x पॉजिटिव है पहली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, लेकिन दोनों सेटिस्फाई करने वाला कॉमन सॉल्यूशन होना आपको, तो कॉमन शेडेड रीजन चाहिए. आगे और तुम अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए, it represents first quadrant
दैट कॉमन सॉल्यूशन रिप्रेजेंट द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरह से बाकी जो 3 दिए है और 1 और 3 दिए उसका सॉल्यूशन या फिर कॉमन रीजन शो कर सकते। वो आपने शो किया मतलब यू हैव सॉल्व्ड द टू इनइक्वेशंस ग्राफिकली। नंबर 3 में उसने लिया ऐसे इनइक्वेशंस जिसमें x की टर्म है लेकिन y की टर्म में मतलब b 0 है, वहां c भी है। 2x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिया, सिंगल इनइक्वेशन है। तो इसका ग्राफ आपको निकालना है। टू ड्रॉ this inequation we have to draw first the graph of the equation अब उसका उसका ग्राफ निकालना है तो सिंपल केस में आता x इज इक्वल टू एच जैसा 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2 होगा यहाँ पर। तो दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसी लाइन रहेगी वो। कोई उसके लिए टेबल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, कौन से पॉइंट्स प्लॉट करूं वो ढूंढते बैठने की जरूरत नहीं। सीधा x एक्सिस पे देखो 3/2 कहाँ है, 3/2 है ना 1.5। x एक्सिस ओरिजिन, यहाँ 1 अगर है तो इधर 2 रहेगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। तो ये बनेगा 1.5 है ना 3/2। तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस at a distance 3/2 units from y axis। तो इस इक्वेशन का ग्राफ होगा x इज इक्वल टू 3/2 या फिर 2x इज इक्वल टू 3 या 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस लाइन के कौन से साइड में x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बनेगा। इन इक्वेशन तो ऐसा है अपना, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2, उसी का मतलब 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, उसी का मतलब 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक ही बात है, तीनों का मीनिंग एक ही है। तो नेचुरली राइट साइड वाला पोर्शन आएगा, लेफ्ट वाला नहीं। तो शेडिंग आएगा इधर, सिंगल इनइक्वेशन है इसलिए कॉमन शेडिंग का जरूरत नहीं हमको। या लिखो रीजन पे कौन सी इनइक्वालिटी वहां पर, कौन सा इनइक्वेशन वहां पर सेटिस्फाई हो रहा, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ अगर मान लो 2y माइनस 3 रहता तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 बनता हो, और y इज इक्वल टू 3/2 बोले तो ऐसी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ग्रेटर देन है इसलिए ऊपर वाला पार्ट शेड, लेस देन रहता तो नीचे वाला पार्ट शेडिंग में आता। शेडेड रीजन you have to show, which implies that it is the graphical solution of the inequation. You have solved the inequation graphically. तो सिंगल वेरिएबल वाले या तो x या फिर y,
पैरेलल टू या तो वाई एक्सिस नहीं तो फिर एक्स एक्सिस, ऐसी लाइंस जिसमें है वो इन इक्वेशंस यहाँ नंबर 3 में दी है। अब नंबर 4 में ऐसे इन इक्वेशंस आपको दिखेंगे जहां पर x की टर्म है y की भी टर्म है, लेकिन उधर 0 है। जीरो या फिर कोई कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट, दोनों एक में उसने इंक्लूड किया। फोर्थ का पहले जिसमें 0 है, थर्ड वाला इन इक्वेशन लिख लेते। 3x plus 2y is greater than or equal to 0. We have to show this in equation graphically. To draw the region of this in equation, we must draw the line. कौन सी लाइन? 3x plus 2y is equal to 0. अब यहाँ पर दो वेरिएबल से तो आपको पॉइंट्स प्लॉट करना पड़ेगा। पासिंग थ्रू ओरिजिन तो निश्चित रूप से रहेगी। यहाँ एक छोटा सा टेबल अगर बनाना चाहते आप, जहाँ पर अलग अलग एक्स और वाई की वैल्यूज दिखेगी, पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड वो भी दिखेंगे। एक जहाँ पर एक्स 0 लेंगे, दूसरा जहाँ पर वाई 0 लेंगे। जहाँ एक्स 0 है मतलब पॉइंट जाएगा वाई एक्सिस पे, और जहाँ वाई 0 है वो पॉइंट आएगा एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पुट करके कंसर्निंग वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एक्स के जगह 0 पुट किए तो 2y इज इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू 0, और y 0 ले तो x 0। तो ओरिजिन रिपीट करने की जरूरत नहीं। ओरिजिन एक पॉइंट तो हो गए, दूसरा पॉइंट अगर लेना है तो आप अपने सुविधा से x की वैल्यू चूज कर सकते हैं। जैसे आपने लिए 3 या 2 या 1, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। 1 लेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा वो, इसलिए 2 लेंगे हम। फ्रैक्शन वी शुड अवॉइड। x की जगह 2 लेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? ये बनेगा 6, उधर जाएगा तो -6, -6 अपॉन 2 है ना -3। तो 2 -3 ऐसे बनेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट टू बी प्लॉटेड। तो x एक्सिस y एक्सिस यहाँ लेंगे हम। देखो ओरिजिन यहाँ रहेगा, 0 0 में से लाइन तो पास होगी, फिर दूसरा पॉइंट प्लॉट करना है ताकि लाइन हम ज्वाइन कर सके। तो दूसरा पॉइंट कहाँ है? 2 -3। तो x कोऑर्डिनेट है 2, यहाँ है मान लो, और -3 इधर रहेगा कहीं। -1 -2 -3 अप्रोक्सीमेटली 1 2। तो 2 -3 इतने में कहीं तो भी दिखेगा। ये दोनों पॉइंट्स ऐसे एन सर्कल करने के बाद, आफ्टर encircling the 2 points you can join। ये जो लाइन हमने निकाले
कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है वो? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 का। अब इसका कौन सा हाफ शेड करना पड़ेगा ताकि 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 0 बन जाए। इधर अगर तुम देखते, कोई भी एक साइड लो, 1 0 यहाँ देखते हैं ऊपर वाला पार्ट, तो क्या ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा? 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 0 0, 3 प्लस 0 मीन्स 3, it is greater than 0, and so you have to shade this upper part, such perpendicular arrows you have to draw. This shaded region implies the graphical solution of the in equation 3x plus 2y greater than or equal to 0. ऐसा स्टेटमेंट वहां पर आप लिख भी सकते हैं चाहो तो। अब यहाँ अगर मान लो 0 नहीं है, 6 है, 5 है, कुछ भी है, पहले एग्जांपल में दिया है x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 6, so to draw that in equation, graph of the in equation, we consider the equation x plus 2y is equal to 6। तो इसके लिए भी आप ऐसा टेबल बना सकते हैं, x 0 है तो y कितना, y 0 है तो x कितना। लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। x 0 है तो y बनेगा 3, और y 0 है तो x बनेगा 6। तो 0 3 और 6 0, these are the 2 points to be plotted। तो x एक्सिस पे 6 होना, तो इधर y एक्सिस थोड़ा सा डिस्टेंस रख के लेना पड़ेगा। x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। इधर जगह अगर कम पड़ती तो 1 यूनिट यानी 2 3 ले सकते, कुछ भी 2 4 6 3 6 9 ऐसा, या 1 2 3 2 लेते हैं, 2 4 या 6, 1 यूनिट मीन्स 2। तो 6 0 ये है पॉइंट। y एक्सिस का जो यूनिट है वो डिफरेंट रख सकते हैं आप, 1 सेंटीमीटर यानी 1 2 3, ये पॉइंट होगा 0 3, यहाँ है 6 0। इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इसका ओरिजिन साइड की नॉन ओरिजिन साइड, दैट यू कैन चेक। 0 0 अगर पुट करते हैं यहाँ पर तो 0 प्लस 0 ने 0 होगा, लेस देन 6 होता है, दैट मीन्स यू हैव टू शेड द ओरिजिन साइड। ऊपर नीचे इधर पूरा रीजन, द शेडेड रीजन, इसमें कॉमन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक से ज्यादा इन इक्वेशंस है नहीं। द शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ
the given in equation देखिए पांचवे में आपको एक से ज्यादा इन इक्वेशंस दिए हैं, उसका भी एक देख लेते हैं, बाकी आपके लिए हम छोड़ देंगे। पहले में कौन से दो क्वेश्चन हुई है। पहला इन इक्वेशन है 2x plus y is greater than or equal to 2, and second is x minus y is less than or equal to 1. So to draw these inequalities in equations 2x plus y greater than or equal to 2 and x minus y less than or equal to 1, we should draw two lines, 2x plus y equal to 2 and second is x minus y equal to 1. तो दोनों लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो दोनों के लिए ऐसे टेबल्स आपको बनाना पड़ेगा। टू इन वन भी बना सकते हैं, यहाँ पर x और इधर y, इधर फिर पॉइंट्स x y। यहाँ कौन सा इक्वेशन आप ले रहे हैं, 2x plus y equal to 2, ठीक है। यहाँ पर x minus y equal to 1, हर इक्वेशन के लिए दो दो पॉइंट्स होना हमको, तो यहाँ पर इसके दो पार्ट्स बनाना पड़ेगा, इसके भी दो पार्ट्स। एक पार्ट जहाँ पर x 0 है तो y कितना, दूसरा पार्ट y इक्वल टू 0 तो x कितना। तो पहले इक्वेशन के लिए x की जगह 0 पुट करके देखो, y बनता 2, और y 0 पुट करके देखेंगे तो x बनता 1, इसलिए 0 2 एक पॉइंट और 1 0 दूसरा पॉइंट। यहाँ पर प्लॉट करेंगे हम। x एक्सिस और y एक्सिस, जीरो टू A1 2 3, y एक्सिस में 1 2 3, 0 2 बोले तो y एक्सिस का पॉइंट, 1 0 बोले तो x एक्सिस का पॉइंट, कर देंगे ज्वाइन, मिल जाएगी आपको एक लाइन। ये होगी लाइन जिसका इक्वेशन 2x plus y इक्वल टू 2 है। यहाँ के पॉइंट्स आप शो कर सकते चाहो तो, 1 0 इधर 0 2। सेकंड लाइन के लिए जब x 0 है तो y बनेगा -1 और y 0 है तो x बनेगा +1, तो 0 -1 एक पॉइंट, 1 0 दूसरा पॉइंट। तो लेफ्ट में आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा, ये 1 है तो इधर में -1, जीरो -1 बोले तो वो एक्सिस पे चला जाएगा, वो ये 1 इधर -1, जीरो -1 दूसरा पॉइंट कौन सा है 1 0, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करो।
स्ट्रेट लाइन दिखना चाहिए, इसलिए स्केल का यूज करो। इसका इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों लाइंस पे ऐसे एरोज नहीं देते बैठेंगे, सिर्फ कॉमन रीजन शेड अगर करना है तो देखो इस लाइन का ओरिजिन साइड शेड होगा कि नॉन ओरिजिन साइड टू बी शेडेड। जीरो प्लस जीरो यानी जीरो, जीरो ग्रेटर देन 2 नहीं होता, मतलब इस लाइन का जहां तक सवाल है उसका ओरिजिन साइड शेड नहीं होगा, नॉन ओरिजिन साइड। ये सबसे पहले इसे डिसाइड करना है आपको। सेकंड लाइन के लिए सेकंड इन इक्वेशन है ये, जीरो माइनस जीरो यानी जीरो, लेस देन 1 होता है, मतलब इट इज द ओरिजिन साइड टू बी शेडेड। पहले इन इक्वेशन के लिए नॉन ओरिजिन साइड, दूसरे इन इक्वेशन के लिए ओरिजिन साइड, इधर की नॉन ओरिजिन बनेगी। तो इसका मतलब ये जो अपनी बाउंड्री है पहले लाइन की और दूसरे लाइन की, इधर में नहीं लाएंगे हम पॉइंट्स, सिर्फ एक कॉमन रीजन शेड अगर करना है, इसको चाहो तो आप इधर बढ़ा सकते, कितने भी दूर जा सकते, सिर्फ कॉमन रीजन। वैसे तो ओरिजिन साइड इस लाइन के लिए उसमें ये भी पॉइंट्स रहेंगे, आपने ऐसा शो भी किए मान लो तो भी कोई हरकत नहीं, हमको कॉमन रीजन होना तो उसका शेडिंग बराबर होना, वो क्लियरली दिखना चाहिए। वो पॉइंट्स इधर भी जाएंगे कुछ वाई एक्सिस के लेफ्ट में, लेकिन ये लाइन के ऊपर। द शेडेड रीजन represents the solution of these inequations graphically, common solution of the inequations graphically। तो इस तरह का टेबल, बाद में ग्राफ्स, बाद में आपका कंक्लूजन, 3 मार्क्स का ये बन जाता। तो ट्राई करो पूरी एक्सरसाइज 7.1, आगे बाद में हम देखते हैं। थैंक यू।